Hello, dear students. We were discussing the concept. mechan- we were discussing the concept mechanism of monsoon. Dear student, we have already discussed about the climatic controls of any place and the factor affecting the climate of India. Dear student, you know very well that India experiences the monsoon type of the climate. In today's class, we are going to discuss what are the different factors that are responsible for the formation of monsoons in India. Dear student, the monsoon are experienced in tropical areas roughly between 20 degree north and 20 degree south. यानी कि आपका जो मॉनसून जो विंड्स है दैट इज अ टाइप ऑफ सीजनल विंड, ये आपकी ट्रॉपिकल एरिया में जो है आपकी perceptibles हैं from 20 degree north to 20 degree south. If we want to understand the mechanism of monsoon, we have to understand the different facts that are related to the monsoon. So what are different facts that are responsible for the mechanism of monsoon? The very first is the differential heating and cooling of land and water create low pressure on the land mass of India while the sea around experience comparatively high pressure. Dear student, as you are aware, the heating and cooling of the land and water is totally different. When there is high pressure on the land, so on the water bodies reverse pressure occur, means low pressure. And when there is the low pressure on the land, high pressure experience with the water bodies. So if we take the example of the Indian landmass, during the summer season, the landmass of India experience the high temperature, and if the temperature is high, it creates the low pressure on the Indian landmass. As it creates the low pressure on the Indian landmass, so around the Indian seas like the Bay of Bengal or the Arabian Sea and Indian Ocean, they experience the high pressure. And you know very well that the wind, they always move from high pressure to low pressure. So due to this fact, our monsoons arrive in India according to this phenomena, the differentiating heating and cooling of land and water. Second factor that is that is responsible for the mechanism of monsoon is ITCZ, the intertropical convergence zone. The shift of the position of intertropical convergence zone in summer over the Ganga plain. This is equatorial trough, normally positioned about 5 degree north of the equator. I mean to say here that there is a concept here, tropical convergence zone. It means here the tropical zone, they are merged with each other, and such types of the thing occur on the 5 degree north of the equator. So earlier, as we experience the tropical circumstances or tropical conditions till the 23.5 degree north, we experience such types of the uh, climatic condition till 28.5 degree north. This is also known as equatorial turf. It is also known as monsoon turf during the monsoon season. If we discuss about the ITCZ, it is a broad trough of low pressure. यानी कि जो ITCZ है, ये आपका जो है एक बहुत बड़ा ट्रफ होता है, एरिया होता है जहां पे आपका लो प्रेशर क्रिएट होता है इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड, और ये आपका जो है इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स पे आपका होता है. दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कन्वर्ज. ये एक ऐसा एरिया होता है जहां पे नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड यहाँ पे चलती है ट्रॉपिकल एरिया में, वो एक दूसरे के साथ कन्वर्ज हो जाती है, मर्ज हो जाती है. दिस कन्वर्जेंस जोन लाई more or less parallel to the equator.
ये जो एरिया होता है ये इक्वेटर के आसपास ही आपका होता है, बट मूव्स नॉर्थ और साउथ विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, और सन की अपेरेंट मूवमेंट की वजह से ये आपका जो है नॉर्थ और साउथ में चलता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि समर सीजन में आपका जो है, जैसे कि सनरेज डायरेक्टली जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, समर सोलस्टिस यहाँ पे आपका होता है, तो सन की जो मूवमेंट है वो आपकी नदरन हेमिस्फीयर में है, इसलिए जो ये सरकमस्टांसिस आपकी ये 5 डिग्री नॉर्थ ऊपर की ओर आपकी जो है एक्सपीरियंस की जाती है। द थर्ड कंडीशन इज द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर अप्रोक्सीमेटली एट 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशन। यहाँ पे आपका क्या फैक्ट है, इफ यू हैव ए लुक ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड you will found that in the Africa continent there is the Madagascar Sea. In the east of that Madagascar Sea there is the creation of the high pressure area at this time. So ये जो हाई प्रेशर आपका एरिया होता है अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशन, तो ये जो आपका इंडियन ओशन जो आपका 20 डिग्री साउथ पे आपका है इस जगह पे, तो अगर आप इंडियन ओशन के साथ भी इसका कंपैरिजन करें तो मेडागास्कर सी पे आपका हाई प्रेशर होता है। एंड यू नो वेरी वेल दैट एयर विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सो द इंटेंसिटी एंड पोजिशन ऑफ दिस हाई प्रेशर जो मेडागास्कर सी पे ये हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है अफेक्ट द इंडियन मॉनसून, ये इंडियन मॉनसून को आपका अफेक्ट करता है, यानी कि यहाँ से विंड जो है इंडियन ओशन से होती हुई आपकी जो है इंडियन लैंड मासेज में एंटर करती है। फोर्थ पॉइंट इज तिबेतन प्लेट्यू गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर which result in strong vertical air current and formation of low pressure over plateau at about 9 km above sea level. Dear student, as you are aware about the Tibetan plateau, during the summer season, it intensely get heated. As it get heated, temperature is high and pressure is low. तो जैसे यहाँ पे ये हीटेड होता है तो यहाँ पे आपकी अप्रोक्सीमेटली वर्टिकल एयर चलती है आपकी। अब जो एयर यहाँ पे चलेंगी वो हॉट विंड होंगी, आपकी हॉट एयर होगी, हॉट एयर होगी तो टेम्परेचर को आपका इंक्रीज करेंगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर आपका लो हो जाएगा। सो फॉर्मेशन ऑफ द लो प्रेशर, तो जब ये एयर चलती है आपकी तो यहाँ पे आपका तिबेतन प्लेट्यू के पास का जो रीजन है यहाँ पे आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है जो तकरीबन आपका सी लेवल से 9 किलोमीटर तक आपका होता है। सो दिस ऑल्सो अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ द मॉनसून। एंड फिफ्थ फिनोमिना इज द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज and the presence of tropical easterly jet stream over the Indian Peninsula during summer. Dear student, in the factor affecting the climate of India, we discuss about the upper air circulation or the jet stream. Dear student, in India, there are two types of the jet stream prevalent. These are our westerly jet stream and easterly jet stream. जो आपकी westerly jet stream होती है, this is activated from 27 degree to 30 degree north and it is activated just for the 4 months during the winter season, and they bring the Mediterranean cyclone in the India. So they are just confined to the Himalayan region or the Ganga plain region. Second is our tropical easterly jet stream. Tropical easterly jet stream, it is activated at 14 degree north. It is activated in India approximately for 8 months from March to October. So these easterly jet stream, they push the trade wind in India, and these trade wind in India known as the monsoon, यानी कि जो साउथ ईस्ट आपकी जो ट्रेड विंड है दे आर नोन एज द मॉनसून इन इंडिया। तो इंडिया में जो आपकी जो मॉनसून आती है उसमें आपकी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का भी एक क्रूशल रोल आपका होता है। These are the 5 factors that are responsible for the formation of monsoon. Except this, apart from this, there are also 2 factors that affect the formation of
monsoon. These are combinedly known as ENSO, El Nino Southern Oscillation. So now we are going to discuss that what is Southern Oscillation and what is El Nino. Apart from this, what apart from this? Apart from these five factors, that is the differentiating heating and cooling of land and water. Second, ITCZ. Third, high pressure on east of Madagascar Sea. Fourth, Tibetan plateau get intensely heated. And fifth, westerly jet stream and easterly jet stream. इन पांच फैक्टर के अतिरिक्त there are certain changes that occur. So these changes occur in the pressure condition over the southern ocean. जो आपके southern ocean होते हैं, southern ocean कहाँ पे? जहाँ पे आपका पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन और एटलांटिक ओशन मीट करते हैं, और मेनली जहां पे आपका जो है पैसिफिक और इंडियन ओशन आपका मीट करता है, तो वहां पे उन सदर्न ओशन में ऑल्सो अफेक्ट द मॉनसून. तो जो वहां पे जो प्रेशर क्रिएट होता है, इट ऑल्सो अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ मॉनसून. नॉर्मली अगर आप नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सामान्य तरीके से देखें, when the tropical eastern south pacific ocean experience high pressure, जब आपका ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ में जब आप देखेंगे, पैसिफिक ओशन जो वहां पे है, वहां पे नॉर्मली आपका हाई प्रेशर होता है. द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन, और जो आपका ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन होता है, वहां पे आपका लो प्रेशर होता है. सीधी सी बात है बेटा, एयर विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. कहने का मतलब ये है कि यहां पैसिफिक ओशन से जो है इंडियन ओशन की तरफ विंड चलेंगी. दैट इज द प्रेशर सिस्टम. ये नॉर्मल होता है. बट इन सर्टेन ईयर, लेकिन कुछ सर्टेन ईयर में क्या होता है, देयर इज रिवर्सल इन प्रेशर कंडीशन. जो ये प्रेशर कंडीशन होता है, इसमें रिवर्स हो जाता है, इसमें बदलाव आ जाता है. यानी कि पैसिफिक ओशन पे क्या है आपका, हाई प्रेशर है, तो वहां पे लो प्रेशर हो जाता है. और इंडियन ओशन पे क्या है आपका, लो प्रेशर है, वहां पे हाई प्रेशर हो जाता है. तो विंड जो आपकी पैसिफिक ओशन टू इंडियन ओशन चलनी चाहिए, वो आपकी कैसे चलने लगती हैं, इंडियन ओशन टू पैसिफिक ओशन. ये रिवर्स हो जाता है. एंड द ईस्टर्न पैसिफिक हैज लोअर प्रेशर इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न इंडियन ओशन. तो इस तरह से आपकी विंड जो है वो रिवर्स चलने लगेंगी. दिस पीरियोडिक चेंज, ये जो कुछ समय के लिए चेंज आता है इन प्रेशर कंडीशन में, इज नोन एज द सदर्न ओसिलेशन और एसओ. ये जो आपका जो है, इसको हम सदर्न ओसिलेशन और एसओ के नाम से जानते हैं. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन राइज हुआ होगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पे प्रेशर कंडीशन में चेंज आ गया. उसके पीछे एक फैक्ट काम करता है, दैट इज द एल नीनो. एल नीनो जो है, अगर एक सामान्य तरीके से आप देखें, इट इज अ ओशियन करंट. ये एक आपकी ओशियन करंट है. दैट इज अ कोल्ड करंट. जो आपकी एक कोल्ड करंट है, मोस्टली मूव्स इन द पैसिफिक ओशन. जो आपकी पैसिफिक ओशन में मूव करती है, आपकी जो है फ्लो करती है. तो कैसे आपका चेंज आता है, हैव अ लुक हियर. द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर तहीती, Pacific Ocean 18 degrees south and 180 degree west, and Darwin in North Australia, Indian Ocean 23 degree and 30 minutes south and 131 degree east is computed to predict the intensity of the monsoon. सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो बेटा पैसिफिक ओशन में तहीती स्थान से और डार्विन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में डार्विन स्थान से आपकी मॉनसून की इंटेंसिटी को प्रिडिक्ट किया जाता है, उसकी भविष्यवाणी की जाती है कि किस तरीके से मॉनसून आपका आएगा. इफ द प्रेशर डिफरेंस वर नेगेटिव, अगर प्रेशर डिफरेंस नेगेटिव होता है, इट वुड मीन बिलो एवरेज एंड लेट मॉनसून. इसका मतलब ये है कि मॉनसून जो है कम रेनफॉल करेगा और लेट आएगा. अब ये नेगेटिव कैसे होगा, अभी आपने पढ़ा कि सामान्य तरीके से पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर होता है, इंडियन ओशन में लो प्रेशर होता है. लेकिन सर्टेन ईयर में क्या होता है, इंडियन ओशन के ऊपर हाई प्रेशर हो जाता है और पैसिफिक ओशन के ऊपर लो प्रेशर हो जाता है. तो विंड आपकी इंडियन ओशन टू
पैसिफिक ओशन चलने लगती है तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव है। अगर ऐसा होता है तो मॉनसून लेट आता है। अगर नॉर्मल चलता है तो उसको हम पॉजिटिव कहेंगे और मॉनसून आपका जो है टाइम से आएगा। अब जो नेगेटिव कंडीशन ये आपकी बनी है, a feature connected with the SO is the El Nino phenomena, यानी कि जो ये SO प्रेशर कंडीशन में जो चेंज आया है वो एल नीनो की वजह से आता है, इन विच अ वार्म ओशन करंट, यानी कि एल नीनो जो है एक जो है आपकी जो है कोल्ड करंट है, लेकिन उस सर्टेन ईयर में क्या होता है, ए वार्म ओशन करंट दैट फ्लोज पास द पेरिवियन कोस्ट। पेरिवियन कोस्ट पे, यानी कि ये एल नीनो जो है पेरिवियन कोस्ट पे पैसिफिक ओशन में चलती है, वहां पे आपकी वार्म करंट चलने लगती है इन प्लेस ऑफ द कोल्ड करंट। नॉर्मल तरीके से कोल्ड करंट होती है, लेकिन ये सर्टेन ईयर में एवरी 2 to 5 ईयर, तकरीबन जो है प्रत्येक 2 से 5 साल के अंदर एक बार ये कोल्ड करंट जो है वार्म करंट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो है आपका जो प्रेशर है वो आपका चेंज हो जाता है। क्योंकि अगर वार्म करंट हो जाएगी, वार्म करंट होगी तो क्या होगा, पैसिफिक ओशन है, वार्म करंट वहां पे चलने लगी, वार्म करंट चलेगी, टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो हो जाएगा। और यही रीजन है कि पैसिफिक ओशन में सर्टेन ईयर में आपका प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। द चेंज इन प्रेशर कंडीशन आर कनेक्टेड टू द एल नीनो, तो ये एल नीनो से कनेक्टेड है, हैंस द फिनोमिना इज रेफर्ड टू एनसो, और कंबाइंडली हम इस फिनोमिना को एनसो के नाम से जानते हैं, एल नीनो सदर्न ओसिलेशन। एसओ क्या है बेटा, चेंज इन प्रेशर, और एल नीनो क्या है, चेंज इन ओशियन करंट, यानी कि वहां पे पहले कोल्ड करंट चलती थी वहां पे वार्म करंट चलने लगती है, और एसओ में क्या है, प्रेशर में आपका चेंज हो जाता है, यानी कि पैसिफिक में आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून। Our next topic is the onset of the monsoon and withdrawal of the monsoon. First of all, we will discuss about the onset of the monsoon. The monsoon, unlike the trades, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो मॉनसून विंड्स होती हैं अनलाइक दी ट्रेड, वो ट्रेड विंड की तरह नहीं होती। कैसे? क्योंकि ट्रेड विंड को केवल एक ही फैक्टर अफेक्ट करता है, दैट इज द एयर प्रेशर। इक्वेटर पे क्या होता है आपका, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। 30 डिग्री पे क्या है आपका, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। तो वहां से विंड जो है सब ट्रॉपिकल एरिया टू इक्वेटर एरिया की तरफ चलती हैं, और वहां पे जो ये विंड चलती हैं, इन विंड्स को हम ट्रेड विंड के नाम से जानते हैं। केवल एक एयर प्रेशर उसको अफेक्ट करता है। जबकि जो मॉनसून होती है, दे आर नॉट स्टेडी, वो एक जैसी नहीं होती, बट आर पल्सेटिंग इन नेचर, वो चेंज होती रहती हैं, आपकी चेंजेस आते रहते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर अफेक्टेड बाय डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन एनकाउंटर बाय इट ऑन इट वेज ओवर द वार्म ट्रॉपिकल सीज। क्योंकि इसको जो है बहुत सी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस अफेक्ट करती हैं जो ट्रॉपिकल सी में ये एनकाउंटर करती हैं। बहुत से कौन सी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, आई टोल्ड यू अबाउट दी 7 थिंग्स। दीज आर अवर द डिफरेंशिएटिंग हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस ऑफ लैंड एंड वाटर, ITCZ, high pressure on east Madagascar Sea, Tibetan plateau get intensely heated, tropical easterly jet stream, southern oscillation, El Nino. These are the different atmospheric conditions that affect the monsoon. ये monsoon को affect करती है, so that's why monsoon are not like the trade wind. The duration of the monsoon is between 100 to 120 days. भारत में जो मॉनसून की ड्यूरेशन है वो 100 to 120 डेज आपकी रहती है, स्टार्ट फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सितंबर। और अर्ली जून में जो है आपका भारत में मॉनसून आना शुरू हो जाता है, और तकरीबन आपका मिड सितंबर तक पूरे इंडिया को ये कवर कर लेता है। अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल, जब भारत में मॉनसून आता है, द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेस सडनली, तो नॉर्मल जो रेनफॉल होती है वो एकदम से आपकी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, एंड कॉन्टिन्यूस कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज, और कई दिनों तक लगातार रेनफॉल होती रहती है। दिस इज नोन एज द ब्रस्ट ऑफ द मॉनसून।
जब कई दिनों तक ऐसे रेनफॉल होती है, एकदम से रेनफॉल बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, दिस फिनोमिना इज नोन एज ब्रस्ट ऑफ मॉनसून। उसको हम ब्रस्ट ऑफ मॉनसून के नाम से जानते हैं। कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्री मॉनसून शावर, और इस चीज को हम प्री मॉनसून शावर यानी कि पहले जो कम रेनफॉल होती है, हल्की फुल्की रेनफॉल जो होती है, उससे हम इसको अलग कर सकते हैं। The monsoon arrives at the southern tip of the Indian peninsula generally by the first week of June. भारत में जो सबसे पहले मॉनसून आता है वो इंडियन पेनिजुला साउथ इंडिया में आता है, और ये तकरीबन जो है फर्स्ट वीक ऑफ जून में वहां पर पहुंच जाता है। सब्सिक्वेंटली, और इसके बाद इट प्रोसीड इनटू टू, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। द अरेबियन सी ब्रांच, एक मॉनसून की जो ब्रांच है वो अरेबियन सी से एंटर करती है इंडिया में, एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और दूसरी जो है बे ऑफ बंगाल ब्रांच से एंटर करती है। द अरेबियन सी ब्रांच रीचेज मुंबई अबाउट 10 days लेटर। जो आपकी अरेबियन सी ब्रांच है वो आपकी जो है मुंबई में जो है तकरीबन जो है 10 दिन के अंदर तक पहुंचती है, ऑन अप्रोक्सीमेटली दी 10th of जून। तकरीबन 10 जून तक आपकी मुंबई में आपकी मॉनसून पहुंच जाती है। दिस इज अ फेयरली रैपिड एडवांस, और जब ये मॉनसून ऐसे इंडिया में आपका आता है, ये बहुत तेज गति से आता है, रैपिड एडवांस होता है आपका। The Bay of Bengal branch also advances rapidly and arrives in Assam in the first week of June. इसी प्रकार से जो बे ऑफ बंगाल से जो मॉनसून आता है वो भी एडवांस होता है, और असम में ये फर्स्ट वीक ऑफ जून में पहुंच जाता है। The lofty mountain causes the monsoon wind to deflect toward the west over the Ganga plain. यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल में जो असम में जो मॉनसून आपका एंटर्ड करता है, वहां पे ये हिमालयन माउंटेन के साथ स्ट्राइक करता है, जो इनको डिफ्लेक्ट कर देता है, मोड़ देता है किसकी तरफ, गंगा प्लेन की तरफ, यानी कि नदरन प्लेन ऑफ इंडिया की तरफ इनको डिफ्लेक्ट करता है। बाय मिड जून द अरेबियन सी ब्रांच, और जब मिड जून आपका होता है तो अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मॉनसून अराइव्स ओवर सौराष्ट्र, कच्छ एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। तो अरेबियन सी जो ब्रांच है वो आपकी जो है सौराष्ट्र कच्छ यानी कि गुजरात में एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में आपकी एंटर कर जाती है। The Arabian Sea and Bay of Bengal branches of the monsoon merge over the northwestern part of Ganga Plain. और जो अरेबियन सी ब्रांच है और बे ऑफ बंगाल जो ब्रांच है वो एक दूसरे के साथ जो है गंगा प्लेन के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आपकी मिल जाती है। दिल्ली जनरली रिसीव द मॉनसून शावर्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। दिल्ली में जो रेनफॉल होती है वो आपकी बे ऑफ बंगाल से होती है, सबसे पहली जो रेनफॉल होगी वो बे ऑफ बंगाल से होती है। बाय द एंड ऑफ जून, टेंटेटिव डेट इज 29th of जून, यानी कि लास्ट वीक ऑफ जून में दिल्ली में आपका रेनफॉल होनी शुरू हो जाती है, जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच की वजह से होती है। बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, और जब जुलाई का फर्स्ट वीक आता है, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा एंड ईस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंस द मॉनसून। तो आपका वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा और ईस्टर्न राजस्थान में मॉनसून आ जाता है। बाय मिड जुलाई द मॉनसून रीचेज हिमाचल प्रदेश एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री, और मिड जुलाई में जो है आपका मॉनसून जो है हिमाचल प्रदेश और इसके अतिरिक्त जो देश के अलग हिस्से बचे हैं वहां तक आपका पहुंच जाता है। सो इन दिस वे द मॉनसून अराइव्स इन इंडिया। दिस इज ऑल्सो नोन एज द onset of monsoon. So how monsoon enter in India? Have a look on the map of India. So monsoon has a fixed path. In that path monsoon entered in India, and in the same path it withdraw from the India. So how it arrives in India? Have a look here. In the first week of the June it arrives in the southern tip like this, and 10th of the June it entered in the Mumbai region. Next, 15th of June, it entered in the Saurashtra, Kutch, Gujarat region and the central India. 1st July, it entered in the northwestern area of India, and 15th July, it moves toward the Aravalli ranges or the Thar desert. So, in this way, our monsoon arrives in India. Next is the withdrawal of the monsoon, कि भारत से monsoon कैसे जाता है।
विड्रॉल और रिट्रीट ऑफ द मॉनसून इज मोर ग्रेजुअल प्रोसेस, यानी कि जब मॉनसून भारत में आता है तो ये रैपिड एडवांस होता है, लेकिन जब ये विड्रॉल करता है, वापस जाता है, तो इट इज अ मोर ग्रेजुअल प्रोसेस, तो ये एक बहुत स्लो प्रोसेस होती है, बड़ी धीमी गति से ये जाता है। द विड्रॉल ऑफ द मॉनसून बिगिन इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया बाई अर्ली सेप्टेम्बर, और जो मॉनसून भारत से जाना स्टार्ट होता है, ये नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया से निकलना शुरू होता है अर्ली सितंबर में, यानी कि जहां पर सबसे बाद में मॉनसून आता है, सबसे पहले वहीं से जाता है। बाय मिड अक्टूबर इट विड्रॉज कंप्लीटली फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिजुला, और मिड अक्टूबर तक ये जो है आपका तकरीबन नॉर्थ इंडिया से कंप्लीटली जो है आपका मॉनसून चला जाता है। द विड्रॉल फ्रॉम द सदर्न हाफ, और साउथ इंडिया में जब ये आपका जाता है इज फेयरली रैपिड, तो वहां से तेज गति से ये आपका विड्रॉल होता है। बाय अर्ली दिसंबर, और जब अर्ली दिसंबर होता है, द मॉनसून हैज विड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, तो पूरे भारत से आपका मॉनसून चला जाता है। द आइलैंड रिसीव वेरी फर्स्ट मॉनसून शावर्स, सबसे पहले इंडिया में मॉनसून की जो रेनफॉल होती है वो आइलैंड ग्रुप रिसीव करते हैं, यानी कि लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे आपकी रेनफॉल होती है प्रोग्रेसिवली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और ये जो रेनफॉल बढ़ती है ये साउथ टू नॉर्थ बढ़ती है, यानी कि आइलैंड ग्रुप टू इंडिया में सदर्न पेनिजुला में एंटर करती है, और सदर्न पेनिजुला से ये आपका नॉर्थ इंडिया की तरफ मूव करती है फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल टू फर्स्ट वीक ऑफ मे। तो इस प्रकार से साउथ टू नॉर्थ में जो ये जा रही है आपकी, यानी कि आइलैंड ग्रुप से ये फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल टू फर्स्ट वीक ऑफ मे से आपका जो है बढ़ना स्टार्ट होती है साउथ की तरफ। द विड्रॉल टेक प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जबकि जो इसका विड्रॉल होता है, वापस जो मॉनसून आती है वो नॉर्थ टू साउथ आती है, यानी कि जब इंडिया में एंटर करती है तो साउथ टू नॉर्थ करती है, और जब वापस आती है तो नॉर्थ टू साउथ आपकी आती है फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर टू फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, और तकरीबन जो है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक पूरे भारत से आपका मॉनसून निकल जाता है। बाय दिस टाइम द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द विंटर मॉनसून, लेकिन इस समय जो आपका ये जो समय होता है, इस समय जो आपका पूरा कंट्री है विंटर मॉनसून के संपर्क में आ जाता है। अब डियर स्टूडेंट, विंटर मॉनसून क्या है? एक्चुअली जो वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस है उनको विंटर मॉनसून के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको बताया था कि इंडिया में आपकी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी आपकी अफेक्टेड आपकी जो है इन्वॉल्व होती है। दे bring the Mediterranean cyclone towards the Indian land masses that strike with the Himalayan mountain, divided into two parts. One branch goes to Himalayan mountain and second branch goes to northern plain of India. So due to this, our mountain they get the snowfall during the winter, and our northern plain they get the rainfall during the winter, that is a bless for the Rabi crops. So these western cyclone, these are known as the winter monsoon in India. Now have a look on the map how the monsoon withdraw from the India. जैसे आपका आया था वैसे ही आपका जो है मॉनसून आपका जाता है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जहां पे सबसे लास्ट में आया था वहां पे सबसे पहले आपका मॉनसून विड्रॉल करता है, निकलता है। तो इस प्रकार से आपका मॉनसून जो है वो आपका विड्रॉल भारत से जो है करेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये विड्रॉल आपका कर रहा है, यहाँ पे जो ये विंड्स हैं दे आर मूविंग फ्रॉम लैंड टू सी, ये लैंड टू सी आपकी चलती हैं, और यही रीजन है कि जो सेंट्रल इंडिया है यहाँ पे विंटर में रेनफॉल आपकी नहीं होती है। लेकिन ये जो मॉनसून का जो पाथ है जो आपका लैंड टू सी आपका चल रहा है, यहाँ पे आपका क्या है, ये बे ऑफ बंगाल से होता हुआ आपका तमिलनाडु की तरफ से एंटर करता है, एंड इट्स स्ट्राइक विद द ईस्टर्न घाट्स हियर। सो ड्यू टू दिस द तमिलनाडु रिसीव द रेनफॉल ड्यूरिंग द winter season. So this is the withdrawal of the monsoon. So dear student, this is enough for today. Thank you. Have a nice day. God bless you always.